Good morning, everyone. So today we're gonna revise all the articles here. So last time we were talking about the 243 article, where we are talking about that all articles in the constitution were written in the panchayat, where will be the provisions for the gram sabha, gram nayak, panches, sarpanches, and all the criteria and reservation also there, and also the provisions related to the village level governance. So we are continuing with this articles 243 is talking about A to O. This articles dedicated totally dedicated to the villages and villages governance, that is dedicated to the root level of governance. Then also Gandhi wants to, and the panchayat and all the ideology was considered here of Gandhian ideology. 266 is talking about the public account fund, consolidated fund, and contingency fund. Contingency fund is talking about the disaster where the government taken some granted money particular for the disasters, and also the consolidated fund that all the kamai of government is considered to be a consolidated fund. And when we are talking about public account fund, there is the uh, the local person who credits some loan from the government. So that is the uh, public account fund. 267 266 is all about this funds of sarkar. And 280 is talking about the finance commission. Finance commission was constituted by the president. We all know that government, whatever they had a fund related to the total fund में से फाइनेंस कमीशन को पकड़ाती है. 5 साल के लिए गठन होता है इसका, प्रेसिडेंट इसका गठन करता है. राज्य में जो जो फाइनेंस कमीशन का काम होता है, जिस तरह से सेंट्रल स्कीम्स लॉन्च्ड होती हैं, उसी तरह से ही जो है स्टेट में कमीशन होती है. और स्टेट में बहुत सारे जो है जो भी काम गवर्नमेंट के थ्रू किए जाते हैं वो सारे के सारे स्टेट कमीशन में आते हैं. और स्टेट कमीशन क्या करती है, जितना भी उसके पास पैसा होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी पैसा होता है, वो सारा का सारा वो पंचायत से ताल्लुकात रखती है, इतना पंचायत को देती है. पंचायत में जो भी नल वगैरह बन रहे हैं, जो लोकल बच्चों के लिए जो है झूले वगैरह हम देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो स्कीम्स है वो निकाल रही है कहीं ना कहीं, वो भी बहुत हेल्पफुल है. आगे हमने पढ़ा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट property. Right to property is talking about it is considered as an illegal right. We all know that legal right and constitutional right. What is that? Constitutional right, where we are directly go to the Supreme Court, but there is no any legal rights to go Supreme Court. Legal right is like, first you have to moving forward DC, then you are going to High Court, then you are going to Supreme Court. If it valid, if it went good, you can fight this case, right, of land of property. तो property is like कोई भी property हो सकती है. इसको अमेंड करके पहले ये फंडामेंटल राइट था, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द लीगल राइट. और एनीवे, back with this. So now I'm going to talk about Article 301, 301, where we are talking about trade commerce. ठीक है, ट्रेड कमर्स की बात होती है यहाँ पे. 302 बात करता है पार्लियामेंट के पास ये राइट है, अगर कोई ऐसा लग रहा है कि ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा, ट्रेड के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है. पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है. पार्लियामेंट में वही जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स MPs होते हैं, सॉरी, तो MPs वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चेंजेस हो सकेंगे, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं चलेगी, वो सारी पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है. दैट इज़ द पावर. सो नेक्स्ट वी हैव 312. तो ऑल इंडिया सर्विस की बात करें, ऑल इंडिया सर्विस पूरे ही भारत में कहीं ना कहीं जो है पोस्टिंग हो सकती है इनकी. IPS होते हैं, जो IAS होते हैं, वो सारी ये जब प्रोविज़न्स हैं 312 से शुरू होते हैं, लगभग हमारे चलते हैं कहीं ना कहीं 315 तक. ठीक है, तो
ये सारी इंडियन सर्विस की बात करते हैं, किस तरह से उनकी जो प्रोविजंस हैं वो क्या क्या काम करते हैं। स्टेट सेंटर दोनों में होता है ये, ठीक है। पेपर के थ्रू ये क्या करते हैं यहाँ पे सॉरी मतलब कि पोस्टिंग होती है इनकी, कहीं पे भी पोस्ट हो सकते हैं। 323 तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कोई भी अगर हमारा मामला है लोकल बंदों का तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, ये प्रोविजंस हैं। तो आगे हम बढ़े, नो हमने बोला 315 तक ही है जो ये यूपीएससी का जो भी ऑल इंडिया सर्विस है वो आगे तक जाता है हमारा। कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है इन जो ऑफिशियल्स होते हैं इनसे। तो फंक्शन क्या है, राज्य में जो पीएससी होता है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, जेके पीएससी हो गया, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहले जेके पीएससी जो है वो पहले करते हैं, फिर देन दे आर गोइंग टू सेंटर यूपीएससी के लिए, तब जाते हैं। पहले वो अपने आपको चेक करते थे। 320 कहता है 324, अगर हम 324 की बात करें तो यहाँ पे आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शंस करवाता है स्टेट के, फिर हमारे जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 324, इसमें इलेक्शंस जो हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। यूनियन का होता है, सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, पीएम्स हो गए, ठीक है, कैबिनेट्स हो गए। अब स्टेट में भी सीएम वगैरह होते हैं, सीएम हो गए, जो मंत्री परिषद हो गए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ये 3 प्रकार के इलेक्शंस होते हैं। अगर हम बात करें 324 की, तो यूनियन में हमें पता चलेगा कि कौन कौन किस किसका होगा। स्टेट में हमें पता चला कि विधानसभा में एमएलए जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली में जो लोग होते हैं उनके इलेक्शंस होते हैं, एमएलएज के होते हैं, एमएलसी जो होते हैं स्टेट काउंसिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी, इनको भी इलेक्शंस होते हैं। तो स्टेट के द्वारा ही फंडेड पंचायत का चुनाव जो है वो सेंटर के द्वारा नहीं होता, वो स्टेट के द्वारा किया जाता है। अभी अभी हुए थे हमारे, एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है पंचायत की। और इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वोटिंग करने की एज क्या है, 18 ईयर्स है, ठीक है। तो पंचायत, अगर पंचायत में हमने सरपंच बनना तो 21 साल का होना चाहिए। असेंबली में अगर आपने जाना तो 25 साल के तो होने ही चाहिए असेंबली में, जिस तरह से, ठीक है। 325 की बात करें तो वोट करने से कोई नहीं रोक सकता आपको, दैट इज़ द मिडिल राइट। तो रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट, जेंडर, किसी को भी नहीं रोक सकते, सभी वोट दे सकते हैं, सभी अपना अधिकार कर सकते हैं कि भाई हमें अधिकार है। 18 उम्र हो जाए आपकी, ठीक है, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए उम्र। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो 35 वर्ष के होने चाहिए। राज्यसभा में आपने अपनी मेंबरशिप लेनी है तो दैट इज़ यू हैव टू 30 ईयर्स का होल्डर होना चाहिए। लोकसभा में 25 साल में ही बन सकते हैं और पंचायत में 21। और वोट करने की जो क्षमता है या अधिकार है वो 18 साल से ही शुरू होगा। तो दैट 18 साल से आप अडल्ट हो जाते हो, तो इसीलिए 18 साल को कहा गया है। यूपीएससी जो है 315 से लेकर 323 तक जो है वो यूपीएससी की बात होती है। और आगे हम बढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन, किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है गठन करता है और स्टेट, यूनियन और हो गया हमारा जो पंचायत हो गई वहाँ पे इलेक्शंस करवाता है। अगर हम एसटी और एससीज की बात करें तो इनका जो प्रोविज़न है वो कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 328 नेशनल कमीशन बना था किनके लिए, एससी के लिए और एसटीज़ के लिए। एससी के लिए 338 में बना था, एसटीज़ के लिए 338 में बना था। आगे हम बढ़ें 340, तो ओबीसी की बात करता है। ओबीसी के पास कमीशन पावर्स हैं, प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है कि जो है इनके लिए जो है कमीशन बनाया जाए ताकि इनके बारे में, इनके हितों के बारे में सोचा जाए, ठीक है। तो ये 340 है। 343 कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन क्या रहने वाली है, जो मतलब गैजेट में जो होती है वो इंग्लिश ही होती है, और जो ऑफिशियल अगर वो मेंबर है तो वो हिंदी और इंग्लिश यूज़ कर सकता है। 345 कहता है स्टेट की भाषा क्या होगी,
हर एक स्टेट की अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर के हिसाब से। जैसे तेलंगाना जो तमिल है, केरला है तो कर्नाटका है, महाराष्ट्र मराठी है, गुजरात गुजराती है, बिहार का मैथिली है। तो कहीं ना कहीं हिंदी कई राज्यों में हम देख लें तो यूपी में, एमपी और राजस्थान में हिंदी ही चलती है। 348 में अगर बात करें, जो एससी होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट नहीं, सॉरी, दैट इज़ 348 इज़ टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट। मुझे ही कंफ्यूज हो गया, मैंने ही लिखा है। सुप्रीम कोर्ट की भाषा किस में होगी? कोई भी अगर जजमेंट होगा या जिस पर डिस्कशन होगा वो हमेशा इंग्लिश ही भाषा होने वाली है, तो इंग्लिश भाषा ही होगी। आगे 351 की बात करें, हिंदी भाषा का विकास किस तरह से होगा, ठीक है। तो 8 शेड्यूल में बताया गया। हमारे संविधान में कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। तो 12 शेड्यूल में से 8th शेड्यूल वाला जो पार्ट है वो हमारे संविधान में कितनी हिंदी भाषा के अलावा और कितनी भाषाएं होंगी? 22 भाषाएं हैं, इंग्लिश इसमें नहीं है। हिंदी भाषा का विकास किस तरह से करना है हमने, ये हमारी ड्यूटी है और हर एक स्टेट की ड्यूटी है। 352 इज़ टॉकिंग अबाउट नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। ये 352, 356, 360 तो इन सब में 300 में इमरजेंसी की बात होती है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो है उनको ये प्रोटेक्शन मिली है सरकार के या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 361 में, जिसमें हम जो भी क्रिमिनल मैटर्स हैं वो इनको नहीं हो सकते। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नर ने कोई क्राइम किया है या प्रेसिडेंट ने कोई किया है तो ये नहीं। अब 368 कहता है कि कोई भी अगर हमें लगता है कि भाई यहाँ पे अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे अमेंडमेंट्स कौन से आर्टिकल्स के तहत? 368 इज़ टॉकिंग अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी अमेंडमेंट हम करते हैं। 370 तो हट ही गया। 370 वी ऑल नो दैट द स्पेशल स्टेटस टू द JNK जो अभी 2019 में हटा है, जिसको एक्ट लगाकर हमें यूटी बना दिया गया। आगे अगर बढ़ें, 371 इज़ टॉकिंग अबाउट स्पेशल प्रोविजंस ऑफ। कुछ राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। वो कुछ संवेदनशील एरियाज़ होते हैं जो लोग कहते हैं हमें अपना ही देश चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनको स्पेशल स्टेटस से नवाजा गया है ताकि तुम हमारे में ही रहो परंतु हमसे दूर मत जाओ। इसीलिए जो है उनको स्पेशल स्टेटस देके कहीं ना कहीं हमने वो क्या किया है, प्रोटेक्शन प्रदान किया ताकि वो हमारे ही साथ रहें। ओके, तो इसमें आ गया नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्र। एंड फिर आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी को स्पेशल स्टेटस मिलता है। सिक्किम में, मिज़ोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा, कर्नाटका, ये सभी चीज़ें एक किस में आता है? 371 के सब क्लॉसेस है ABCD इस तरह से। अब 393 कहता है शॉर्ट टाइटल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी शॉर्ट टाइटल्स की बात की गई है तो किस तरह से है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी कहीं ना कहीं आर्टिकल्स की बात करता है। तो कहीं से हमें ये पता चलता है कि स्टेट के क्या काम है, पंचायत के क्या काम है, स्टेट कमीशन क्या है, क्या फंड करती है, किस तरह से इलेक्शंस के प्रोसीजर, ये सभी चीज़ें जो है हमारे राइट्स हो गए। और फिर भी हमने कितना मतलब कि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि आर्टिकल्स पढ़ने से हमें ये अनुभूति होती है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारी जो है हमारी ड्यूटीज़ और हमारी जो है राइट्स के बारे में बात करता है। अगर पहले हम अंग्रेज़ों की छत्र छाया में थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और अंग्रेज़ों के बाद भी हमारे कोई यहाँ पे इमरजेंसी घटित नहीं हुआ। इमरजेंसी का मतलब कि हमारे जो राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो हम कर सकते हैं, अनुच्छेदों के द्वारा जो आर्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा हम जो है अपनी जो हमारी फ्रीडम है या हमारी डेमोक्रेसी है हम उसको जीत सकते हैं, ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस और जी।